نیند آ گئی۔ رات کا آخری عمل ہوگا کہ اچانک کسی کی گرم گرم سانسیں میری گردن سے ٹکرائیں۔ اس کے ساتھ مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پہلو میں لیٹا ہوا ہو۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ میرے پہلو میں لیٹی ہوئی ایک نوجوان خوبصورت عورت خواب راحت کے مزے لے رہی تھی۔ میں حیران سا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس حسین و جمیل عورت کو دیکھنے لگا۔ اف خدایا، میں کس گھورک دھندے میں الجھ گیا تھا۔ ہر لمحہ ایک نئی بات نئے سے نئے انداز میں پیش آ رہی تھی۔ میں نے اپنا وہم دور کرنے کے لیے اس کے نرم و نازک رخساروں پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اچانک اس عورت کے لبوں کو جنبش ہوئی، جیسے وہ سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہی ہو۔ میں غور سے اس کے الفاظ کو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ میرے شہزادے، مجھے اب ان ظالموں کے حوالے نہ کرنا۔ میں نے پہلے ہی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ یہ تو وہی آواز ہے جو بخار کی حالت میں پہلے بھی سن چکا ہوں۔ پھر اچانک میری ذہنی حالت بدلنے لگی۔ خوف اور دہشت رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ میرے نفس کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ فطری جبلتیں مکمل طور پر بیدار ہو گئی۔ میرا دل، میری روح پہلی بار کسی عورت کی محبت کی چاشنی سے آشنا ہوئی۔ بے اختیار میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی، کاش یہ حسین و جمیل عورت ہمیشہ اسی طرح گہری نیند سوتی رہے اور میں تا حشر اسی طرح اسے محبت کی پرجوش نظروں سے دیکھتا رہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس کے معصوم چہرے پر ایک پرکشش اور دلفریب مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ پھر اچانک میرے دل میں سگریٹ پینے کی خواہش پیدا ہوئی۔ میں نے کروٹ بدل کر تکیے کے نیچے سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگایا۔ 2-3 لمبے لمبے کش لینے کے بعد کروٹ بدل کر پھر اس کی طرف دیکھا تو اب وہ عورت غائب تھی۔ اسے غائب پا کر میں اتنا دہشت زدہ ہوا کہ میرے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوشی کی نیند سے بیدار ہوا تو میرے ذہن کی حالت بہت ابتر تھی۔ دہشت، یاس کا اس قدر غلبہ تھا کہ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں پھر بند کر لیں۔ کیا میرا واسطہ جنوں یا روحوں سے پڑ چکا ہے؟ یہ واقعہ ان تمام واقعوں سے پراسرار اور انوکھا تھا جو مجھے اب پیش آیا تھا۔ پھر اس دھمکی آمیز خط کا خیال آیا جس میں مجھے وارننگ دی گئی تھی کہ میں ان کی گڑیاں انہیں واپس کر دوں ورنہ موت کے لیے تیار رہوں۔ مجھے جاگا ہوا پا کر نرس نے دودھ پلایا اور سو جانے کی ہدایت کی۔ اب نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اس عورت سے محبت کرنے لگا ہوں جو انتہائی پراسرار طریقے سے میری دنیا میں آئی اور نکل گئی۔ اس عقل کو حیران کر دینے والے واقعے نے میری زندگی میں زبردست انقلاب پیدا کر دیا۔ کہاں میں ان واقعات سے دہشت زدہ تھا، ان کے چنگل سے نکلنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا، کہاں اب اعتماد کے ساتھ میرا ذہن ان واقعات کی تہہ تک پہنچنے کے تجسس کو بیدار کر رہا تھا۔ یہ تبدیلی بہت حیران کن اور امید افزا تھی۔ اب میں اس حسین و جمیل عورت کو حاصل کرنے کے لیے ہر خوفناک طاقت سے ٹکرانے کے لیے تیار تھا۔ نہ جانے مجھے کیوں یہ یقین ہو رہا تھا کہ وہ عورت میری زندگی میں بہاریں لے آئے گی۔ اسی طرح سوچتے ہوئے میں نے غنودگی کے عالم میں کروٹ بدلی تو اپنے جسم میں کسی شے کے ہونے کا مجھے احساس ہوا۔ اپنے پہلو کو ٹٹول کر دیکھا کہ چچا کی بھیجی ہوئی گڑیا میرے ہاتھوں میں آ گئی۔ یا خدایا، یہ اب یہاں کیسے پہنچ گئی؟ اسے تو میں نے اپنے کمرے میں کارنر پر رکھا تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک سے ایک نرالا اور انوکھا واقعہ مجھے پیش آ رہا تھا۔ یہ گڑیا کیا کوئی چڑیل ہے یا پراسرار روح جو ہر لمحہ نت نئے کمالات سے میری حیرت میں اضافہ کر رہی ہے؟ پھر اس گڑیا میں یہ پراسرار حرارت کیسی ہے؟ جب سے میں اس گڑیا کی موجودگی سے آشنا ہوا تھا، ہر واقعہ ناقابل یقین حد تک انوکھا اور پراسرار تھا۔ کیا اس گڑیا کو کوئی میرے پاس لا کر چھوڑ گیا یا یہ کود کر پہنچ گئی؟ کیا یہ گڑیا ہی کہیں میری نادیدہ دشمن تو نہیں؟ مگر نہیں، یہ گڑیا اگر میری دشمن ہوتی تو اس پراسرار مخلوق جو گڑیا کی صورتوں میں آئی تھی ان سے خوفزدہ ہو کر کیوں چیخنے چلانے لگتی؟ تو کیا اس عورت کا اس گڑیا سے کوئی تعلق ہے؟ مجھے اب اس بات کا مکمل یقین ہو گیا تھا کہ جب تک چچا کی بھیجی ہوئی گڑیا میرے پاس رہے گی، ان پراسرار اور دہشت ناک واقعات کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ پھر دشمن کی اس خوفناک دھمکی کا خیال آیا کہ اگر تم اس گڑیا کو دینے کے لیے تیار نہ ہوئے تو کسی بھی وقت اپنی ناگہانی موت کے لیے تیار رہنا۔ نیز اگر ان پراسرار واقعات کا کسی سے ذکر کیا تو مجھے دشمن کے قہر و غضب کا نشانہ بننا پڑے گا۔
सोचते सोचते गुड़िया को मैंने तकिए के नीचे रख दिया और खुद सोने की कोशिश करने लगा। सुबह जागते ही मैंने अपने तकिए के नीचे से गुड़िया को निकालने के लिए हाथ बढ़ाया तो अब वो गायब थी। अब मैंने ये शहर छोड़ देने का फैसला कर लिया था। मुझे यकीन हो चला था कि जब तक मैं इस शहर में रहा मेरा आसाबी निजाम बिगड़ता चला जाएगा। चंद लम्हात उस सोती हुई औरत का कुर्ब मेरे दिल में सरूर अंगेज लहरें पैदा कर देता था, जिसे मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार देखा था। ये बात भी सच है कि वो औरत दुनिया की हसीन तरीन औरतों में से थी। एक सवाल मेरे सामने ये था कि उसे कहाँ तलाश किया जाए। वो कौन है? क्या वो कोई रूह है, कोई चुड़ैल है, कोई जिन जाती है जो एक छलावे की तरह गायब हो जाती है? मुझे यकीन था कि कोई जी होश इंसान इन वाकयात को जो मेरे साथ पेश आ रहे हैं कभी भी नहीं मानेगा। मैं इन होलनाक वाकयात के सिलसिले में किसी से कोई मदद भी हासिल नहीं कर सकता था। मैं आज रात की गाड़ी से इस शहर से चला जाना चाहता था। रुपया मेरे पास काफी था। कुछ सामान अटैची केस में डाला और मैं जाने के लिए तैयार हो गया। अचानक मेरी नजर कॉर्नर की तरफ उठी, जहां मैंने उस पुरअसरार सांस लेती हुई गुड़िया को रखा था। गुड़िया अपनी जगह पर मौजूद न थी। मैं अटैची केस उठाकर दरवाजे की तरफ बढ़ा तो अचानक एक सफेद रेश बुजुर्ग सूरत इंसान दरवाजे में से मेरा रास्ता रोककर खड़े हो गए। कई दिनों से मेरा वास्ता इस किस्म के हैरत अंगेज हालात से पड़ चुका था, तो उस शख्स को अचानक अपने रास्ते में पाकर कोई खास ताज्जुब न हुआ। मालूम होता है हमारी अमानत हमें वापस किए बगैर ही तुम इस शहर से भाग रहे हो, उसने इल्जाम दाग दिया। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में उलझन के आसार आ गए। आप कौन हैं? क्या चाहते हैं? मेरी इस बात को सुनकर वो पुरअसरार अंदाज में हंस पड़ा। तो आप अभी तक मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूं? देखिए साहब, इशारों में बातें करके मेरा वक्त जाया ना करें। मुझे फौरन स्टेशन पहुंचना है। जो भी कहना है मुख्तसर अंदाज में कह दीजिए। आप हमारी अमानत लौटाए बगैर इस शहर से नहीं जा सकते। मगर कौन सी अमानत? मैंने तो कभी आपको ना अपनी जिंदगी में देखा, ना मेरा किसी की जात के वसीले से आपसे कोई वास्ता है, ना ही कभी मेरे आपके दरमियान किसी शय का लेन देन हुआ। अगर आप नहीं जानते तो क्या हुआ, हम तो आपको जानते हैं ना। वो बहुत तेज नजरों से मुझे घूर रहा था। आप अजीब आदमी हैं, ना जान ना पहचान। देखने में तो आप शरीफ इंसान नजर आते हैं, मगर धमकियां आप किसी पेशावर कातिल की तरह दे रहे हैं। अचानक एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर आकर पड़ा। मेरा सर चकरा गया। मैंने खूनख्वार नजरों से उस बुजुर्ग को देखा। वो पहले की तरह अब भी मुझसे तकरीबन 5 फुट के फासले पर खड़ा था। ये थप्पड़ यकीनन इसने नहीं मारा था। मुझे इस हालत में देखकर उसकी मुस्कुराती आंखों में इत्मीनान के आसार थे। उसकी इस पुरअसरार कुव्वत से मैं मरूब हो गया। कहो, अब हमारी अमानत हमारे हवाले करने के लिए तैयार हो या नहीं? मैंने उस बुजुर्ग से पूछा। वो खत जो मुझे होटल में मिला था, क्या आपका तहरीर करदा था? हाँ, वो मैंने तहरीर किया था। मगर आपको ये कैसे पता चला कि मेरे चाचा ने मुझे रुपया और सामान भेजा है और इस सामान में एक गुड़िया भी है? क्या तुम बता सकते हो कि अभी अभी थप्पड़ जो तुम्हारे चेहरे पर पड़ा वो तुम्हें किसने रसीद किया? ये तो खैर मैं नहीं बता सकता कि वो हरकत किसने की थी, मगर मैं ये जरूर जानता हूं कि वो नाज़ेबा हरकत आपके कहने पर हुई है। चंद रोज से आप लोगों ने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। नए से नए वाकयात, नई से नई मुसीबत इस अंदाज से पेश आ रही है। आखिर इसका क्या मतलब है? आप कौन हैं? क्या चाहते हैं? तुम हमारे बारे में लाइम रहो तो ज्यादा अच्छा है। अगर तुम हमारी शख्सियतों से वाकिफ हो गए तो याद रखो, तुम्हारी जिंदगी बहुत दर्दनाक हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी से सकते हुए गुजरेगी। अगर अपनी आइंदा जिंदगी खुशो-खुर्रम गुजारना चाहते हो तो हमारा मुतालबा चुपचाप पूरा कर दो। मुझे अफसोस है जनाब, मैं आपका मुतालबा पूरा नहीं कर सकता। तो अभी तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं हुआ यानी? ये कहते हुए उसने नजर ना आने वाली शय को इशारा किया, जिसने बड़ी बेदर्दी से मुझे पीटना शुरू कर दिया। मैं जब तक पिटता रहा वो खामोशी से खड़ा देखता रहा। मुझे इस तरह पिटते देखकर उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। अब तुम्हें पता चल गया होगा ना कि तुम्हारे इनकार से क्या नताइज निकल सकते हैं। मगर आप क्या चाहते हैं? वो गुड़िया चाहते हैं जो तुम्हारे चचा के भेजे हुए ट्रंकों में मौजूद थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो गुड़िया जहां मैंने उसको रखा था वहां पर अब मौजूद नहीं है।
क्या तुम पूरे यकीन और सच्चाई से कहते हो कि वो गुड़िया वहां नहीं है जहां तुमने रखी थी? हाँ जी, मैंने कॉर्नर पर रखी थी, वो वहां से गायब है। तुमने उस गुड़िया में कोई गैर मामूली बात महसूस की? उसके पूछने पर मैंने वो तमाम वाकयात जो चचा के सामान भेजने से लेकर अब तक मुझे पेश आए थे कमोकास बयान कर दिए। सिर्फ वो हिस्सा ना बताया जहां एक औरत मेरे पहलू में आकर अचानक लेट गई थी। मैंने उस औरत का जिक्र छुपाने में गैर मामूली दलेरी का मुजाहरा किया। मेरी इस बात को सुनकर उसके चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। अहमक इंसान, जो बात तुम्हें मुझसे नहीं छुपाना चाहिए थी वो तुम मुझसे छुपा रहे हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता। अगर आप सब कुछ जानते हैं तो फिर आप मेरी जुबान से क्या कहलवाना चाहते हैं? मैं ये देखना चाहता था कि उस खूबसूरत औरत को अपने करीब पाकर तुम्हारी क्या एहसासात थे कि तुम उस औरत की मदद करना पसंद करोगे। खूब सोच समझकर जवाब देना। मगर आप हैं कौन? तुम्हें मेरे बारे में जानने का बहुत इश्तियाक है तो जरूर तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं, मगर पहले मेरे सवाल का जवाब दो। जनाब, अगर आप मुझसे इस बात का वादा करें कि आप उस औरत से मिलने के सिलसिले में मेरी मदद करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि अपनी जान की बाजी लगाकर भी उस औरत की मदद करूंगा। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूं बिल्कुल। तो फिर इत्मीनान से बैठ जाओ, तो मुझे अपना उस औरत का हमदर्द दोस्त पाओगे। जनाब, जहां मैंने आपके सामने कुछ भी नहीं छुपाया वहां आपकी शख्सियत अभी तक अंधेरे में है। मेरे इसरार पर वो अपने बारे में बताने लगा। वो औरत मेरी भांजी है जिसको तुमने नींद की हालत में अपने करीब पाया। उस पर एक शैतान आशिक हो चुका है। उसने मुझसे मेरी भांजी का रिश्ता मांगा था, मगर मैंने सख्ती से झिड़क दिया, जिस पर उसे उस शैतान सीरत इंसान ने अपने शैतानी अमल से गुड़िया बना दिया, क्योंकि उसके पास एक ऐसी शैतानी कुव्वत आ गई थी जिसका मैं मुकाबला ना कर सकता था। इसलिए उसका तोड़ करने के लिए मुझे कुछ वज़ाइफ करने पड़े। उन वज़ाइफ के दौरान मुझे ये पता चला कि मेरी इस भांजी को वही शख्स उस शैतान के पंजे से छुड़ा सकता है जो उससे सच्ची मोहब्बत करता हो। मैं अपने कशफ से तुम तक पहुंचने में कामयाब हो गया, मगर उस शैतान का अभी तक मैं कुछ नहीं बिगाड़ सका, जिसने मेरी भांजी पर मसनूई मौत तारी करके उसको एक गुड़िया में तब्दील कर दिया। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात की वजाहत करते चलें। फिर वो दूसरी गैर अर्जी मखलूक कौन थी जो रात को मुझ पर हमला आवर हुई? वो भी मेरी और तुम्हारी तरह इंसान ही है, जिनको उसने अपने इल्म के जोर से गुड़ियों की मानिद बना दिया। और वो 3 फुट का इंसान कौन था जो मुझे कीना नजरों से देखते हुए मुझ पर हमलावर होने लगा था? वो वही शैतान बोना है जिसने मेरी भांजी को अपने कब्जे में कर रखा है। वो शैतान नुमा बोना तो मैं कभी का कभी खत्म कर चुका होता अगर मैं अपने मोकलात के जरिए उसे ना रोकता। वो मैं ही था जिसने उसके आने के बाद तुम्हारी हिफाजत की। क्या आप इस बात का वादा करते हैं कि अगर मैं उस शैतान के कब्जे से आपकी भांजी को निजात दिलाने में कामयाब हो गया तो आप मेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेंगे? मैं तुमसे सच्चे दिल से वादा करता हूँ कि अगर तुम इस शैतान के पंजे से मेरी भांजी को निजात दिलाने में कामयाब हो गए तो मैं हरगिज कभी तुम्हारी और अपनी भांजी के दरमियान रुकावट नहीं बनूंगा, बशर्ते कि मेरी भांजी तुम्हारे साथ शादी करने पर रजामंद हो। बस ठीक है जनाब, मुझे इसका इत्मीनान हो गया। आप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। मैं आपके इस शरीफाना वादे पर एतमाद करता हूँ। फरमाइए, मुझे क्या करना होगा? किस तरह मैं उस शैतान के पंजे से आपकी भांजी को निजात दिला सकता हूँ? इसके लिए तुमको मेरे साथ चलना होगा। ये मैं वहां चलकर तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मैं उसके साथ जाने पर आमादा हो गया। अचानक उसने अपना रुख फेरा। जब दोबारा उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया तो उसके हाथों में किसी सियाल नशे से भरा एक गिलास मौजूद था। उसने मुझे पीने के लिए कहा। मैं खुदा का नाम लेकर उसे बेखौफो खतर पी गया। उसके पीते ही मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरी काया पलट गई है। मैं अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस कर रहा था। फिर मेरे जिस्म पर एक अजीब सा नशा हावी होता गया। रफ्ता रफ्ता मुझे नींद आ गई। जब एक आंख खुली तो मैं एक आलीशान कमरे की मसहरी पर लेटा था। मैं हैरान हैरान नजरों से कमरे को देखने लगा। मैंने अपने लिबास पर निगाह डाली तो मेरे जिस्म पर सदियों पुराना शहजादों का सा लिबास था। कमरे में हर तरफ इतर की खुशबू थी। एक अजीब सी मुकद्दस खामोशी हर शय पर हुक्मरान थी।
मुझे जागते हुए देखकर एक खातिम ने झुककर मेरे सामने आदाब बजा लाया। हजूर, गुस्ल फरमा लें, बड़े सरकार आपको याद कर रहे हैं। मैंने उठकर गुस्ल किया, फिर रवायती शहजादों के लिबास में मलबूस एक खादिम की रहबरी में उस कमरे से बाहर निकल आया। एक बड़े हॉल कमरे के सामने पहुंचकर खादिम ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। वहां एक मेजबान एक मेज के गिर्द बैठा हुआ मेरा इंतजार कर रहा था। उसके सामने एक खुशबूदार कहवा और प्यालियां रखी हुई थी। उसने मुझे कहवा पीने की दावत दी। कहो, गरीब खाना पसंद आया? जनाब, अगर आप इस आलीशान इमारत को गरीब खाना कहते हैं तो फिर आपका दौलत खाना कैसा होगा? मैं चाहता हूँ चंद दिन तुम यहाँ खूब घूमो फिरो, सैर करो। जनाब, मैं यहाँ सैर करने के लिए नहीं आया, बल्कि अपनी जिंदगी के एक अहम फर्ज की तकमील के लिए आया हूँ। खूब, बहुत खूब। नौजवान, मैं तुम्हारी इस फराग दिली की कदर करता हूँ और खुदा से दस्ते बाद दुआ हूँ कि वो जल्द अज जल्द तुम्हें अपने मिशन में कामयाब करे। जाफर, जी हजूर, इनको ले जाओ। तुम्हें खूब अच्छी तरह याद है कि इन्हें कहाँ ले जाना है? जी हजूर। मैं उस खादिम की रहबरी में अपने मेजबान के कमरे से रुखसत हो गया। खादिम एक और कमरे के सामने आकर रुका और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सी खुशबू मेरे नथनों से टकराई। एक धोती पोश हटा कटा इंसान तकरीबन 50 के पेटे में होगा अपने सामने धूनी जमाए बैठा हुआ था। मेरे कदमों की चाप सुनकर उसने आंखें खोल दी। उसकी लाल सुर्ख अंगारे जैसी आंखें देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की सनसनी महसूस हुई। उसने मुझे अपने पास बुलाया और बैठने को कहा। उसके सामने बैठते हुए जूं जूं वक्त गुजर रहा था मेरी बेचैनी में इजाफा हो रहा था, मगर वो आंखें बंद किए अपना ध्यान ज्ञान में मगन रहा। मेरा ध्यान बार बार उस मिसेरी की जानिब जाता जहां कोई शय चादर में लिपटी हुई लाश की मानित पड़ी थी। अचानक उस आदमी ने आंखें खोल दी और मेरी आंखों में झांका। 2 मिनट तक वो खामोशी से मेरी आंखों को देखता रहा। उसकी आंखें मुझे खौफजदा कर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये आंखें किसी इंसान की नहीं है। नौजवान, तुम्हें मेरे बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, अचानक वो बोला। मैं उसकी बात को सुनकर अपने दिल में शर्मिंदगी महसूस करते हुए खामोश रहा। उसने मुझे मसहरी की तरफ जाने का इशारा किया। मैं मसहरी के करीब खड़ा हो गया। अचानक वो भी उठा आकर मेरे करीब खड़ा हो गया। उसके बदन से बहुत गलीज पसीने की बू आ रही थी। उस शख्स ने सर की जानिब से चादर को सिरका दिया। मैं उस चेहरे को देखकर चौंक पड़ा। वो उस सोई हुई औरत का चेहरा था जिसके इश्क में मैं मुब्तला होकर यहाँ आया था। इसके हर नक्शो निगार को तुम अपने जहन में महफूज कर लो। इसकी मुकम्मल शबीह तुम्हारे जहन में रहनी चाहिए। उस शख्स की उन हदायत को सुनकर मैं उलझन में आ गया। इस औरत के ख्याल के अलावा बाकी तमाम दुनिया से इस वक्त अपना रिश्ता खत्म कर लो। जानते हो ये कौन है? मैं इसके अलावा और कुछ नहीं जानता कि ये औरत एक दिन बिस्तर में मेरे साथ नींद की हालत में पड़ी थी और जिस तरह अचानक ये मेरे बिस्तर तक पहुंची थी उसी तरह अचानक गायब हो गई। इसके अलावा भी जानते हो? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या तुम इससे मोहब्बत करते हो? हाँ, मैं इसे हर कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। नौजवान, तुम जरूर इसे हासिल कर सकते हो बशर्ते तुम इसके लिए जिंदा रहो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। नौजवान, इसे हासिल करने के लिए तुम मौत से हमकनार भी हो सकते हो, क्योंकि इसकी रूह एक ऐसे शैतान के कब्जे में है जो खौफनाक शैतानी कुव्वतों का मालिक है। मगर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारा इश्क सच्चा है तो तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। अब जब तक ये जाग ना जाए तुम इसकी मसहरी के गिर्द ये अल्फाज दोहराते रहो और चक्कर लगाते रहो। उसने मुझे वो अल्फाज अच्छी तरह से याद कराए। तुम्हें खौफनाक आवाजें डराएंगी, तरह तरह की धमकियां और लालच दिए जाएंगे, मगर तुम उनकी हरगिज परवाह ना करना। और अगर तुमने घबरा कर ये अल्फाज दोहराने छोड़ दिए तो याद रखो, इसकी ही नहीं बल्कि तुम्हारी मौत भी वाक़ई हो जाएगी। वो मुझे अपना अमल शुरू करने का इशारा करते हुए वहां से चला गया। मैंने अपना अमल शुरू किया, मसहरी के गिर्द चक्कर लगाने लगा। उस वक्त दिन था जब मैंने वो अमल शुरू किया। फिर रात हो चुकी थी। हर तरफ एक मुकद्दस खामोशी छाई थी। अभी रात का पहला पहर होगा कि खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ हर तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उस खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज के साथ अंधेरा होने की वजह से मेरा दिल खौफ की शिद्दत से धड़कने लगा। मैं वो अल्फाज दोहराता रहा,
फिर खिड़कियों के दरवाजों के पट जोर जोर से बजने लगे। अचानक मैंने महसूस किया जैसे ये कमरा हजारों खौफनाक दरिंदों से भर गया हो और हजारों आंखें कीनतोज नजरों से मुझे घूर रही हों। जब मेरा ध्यान उन खौफनाक दरिंदों के सिमट जाता, मेरे अमल की रफ्तार मध्यम हो जाती, मुझ पर खौफ का गलबा हो जाता। मुसलसल चक्कर लगाने से मेरी टांगें दर्द करने लगी थी, मगर किसी न किसी तरह मैं अमल को जारी रखते हुए था। अचानक किसी के चीखने की आवाजें हर तरफ गूंजने लगीं। ये चीखें बिल्कुल उन चीखों से मुशाबे थीं जो अपने कमरे में मैं सुन चुका था। मेरी रूह उन दर्दनाक चीखों को सुनकर मुस्तरिब हो गई। फिर अचानक चीखों की आवाजें आना बंद हो गईं। फिर किसी के बैन की सदाएं आने लगीं। बैन करने की आवाजें बुलंद हो रही थीं तो मेरी रूह पर खौफ की कपकपी तारी हो रही थी। फिर अचानक हर तरफ रोशनी फैल गई। सारा कमरा सांपों और बिच्छुओं से भर गया। मेरा दुश्मन बराबर मुझे खौफजदा कर रहा था। फिर वही अर्जी मखलूक नमूदार हुई जिसने मुझे जख्मी किया था। वो अपने हथियार लहराते हुए मेरी सिमत बढ़ रही थी, मगर मसहरी से सिर्फ 3 फुट दूर ठहर कर सांपों और बिच्छुओं की तरह मेरे गिर्द घेरा बांध कर खड़ी हो गई। मैंने महसूस किया अब अगर एक लम्हे के लिए भी अमल रुका तो ये खौफनाक मखलूकात मेरे जिस्म की बोटियां नोच कर खा जाएंगी। मेरी टांगें मुसलसल चक्कर लगाते हुए सूज गई थीं। चलना दुश्वार हो रहा था, लेकिन मैं अपनी कुव्वत इरादी के बल पर अपने इस अमल को जारी रखे हुए था। रात गुजर चुकी थी। अब सुबह की दूधिया रोशनी हर तरफ फैलने लगी थी। अचानक एक तेज बदबू का झोंका नतनों से टकराया, जैसे गली सड़ी लाशों की बदबू हर तरफ फैल रही हो। ये बदबू जिस्मानी थकन बनकर मुझ पर गालिब होने लगी। मेरे चक्कर लगाने की रफ्तार बहुत सुस्त पड़ गई। अब मैं थकन से चूर होकर गिरने वाला था कि किसी के लंबे लंबे सांस लेने की आवाजें फिजा में गूंज उठी। ऐसा महसूस हुआ जैसे उस चादर में लिपटी लाश में सांसों की आमदरफ जारी हो चुकी है। साथ ही वो कमरा किसी अजनबी खुशबू से महकने लगा। वो महक इतनी तेज थी कि मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो सूरज गुरूब हो रहा था और मैं उस अजीम शान इमारत के कमरे में मसहरी पर पड़ा था। आंखें खोलते ही मैंने देखा कि कुछ लोग कतार बांधे हुए मेरे जागने के मुंतजिर थे। उनमें वो बुजुर्ग सूरज जाना पहचाना चेहरा भी मौजूद था जो सब में नुमाया था। मुझे बेदार होते देखकर उस बुजुर्ग सूरत इंसान ने कहा, अब कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ। ये बताइए कि उस अमल के क्या नताइज रहे? उसके नताइज बहुत खुशगवार रहे। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। आपको अपना वादा याद है? हाँ, मुझे अपना वादा याद है। क्या तुम अब खुद को बेहतर पा रहे हो? जी। वो तमाम लोग रुखसत हो गए। मैं उठा, गुसल खाने में घुस गया, मगर मेरी सोच का महवर उस हसीनो जमील औरत की जात थी जिसका मैं नाम भी नहीं जानता था, मगर उसका हुस्न मेरी आंखों में खुब गया था। उससे मिलने के तस्वुर से दिल में खुश अंगेज ख्यालात पैदा हो रहे थे। उस अजीम कामयाबी पर मेरी रूह मुसरत से झूमती हुई थी। वो सब लोग खाने की मेज पर जमा थे और मेरा इंतजार कर रहे थे। पहले मेरा सबसे तारुफ हुआ, उसके बाद खाने में मशगूल हो गए। खाना बहुत लजीज था। खाने के बाद कलाम का सिलसिला शुरू हुआ। इस अरसे में मैंने ये बात बड़ी शिद्दत के साथ महसूस की कि जिस अजीज हस्ती के लिए मैंने ये सारी तकलीफें उठाई थीं वो अभी तक मेरे सामने नहीं आई थी। उसे महफिल में ना पाकर मेरी तबीयत बुझ सी गई। उस बुजुर्ग सूरत इंसान से मुखातिब हुए मैंने कहा, अब मोहतरम बाकायदा तारुफ हो जाना चाहिए। मेरे इन अल्फाज को सुनकर महफिल पर सन्नाटा छा गया। सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं और ये कौन सी जगह है, ताकि मेरे अंदर जो अजनबियत का एहसास भर रहा है वो खत्म हो जाए। मैं इस रियासत का नवाब हूँ। ये सब मेरी रियासत के शुरफा हैं। मेरा नाम इस्माइल जाह है। इस रियासत का नाम आलमपुर है। क्या तुम अपने चचा के बारे में जानना चाहते हो? उसने अचानक सवाल कर दिया। मरकजी किरदार तो इन हालात में मेरे चचा ने ही अदा किया है। अगर वो फैजियाना तौर पर मेरी माली इमदाद ना करते और वो ट्रंक ना भेजते तो मेरा फिर आपसे ये पुरस्कार सिलसिला कैसे कायम होता? तुमसे हमारा सिलसिला फिर भी कायम होता। मैं आपकी इस बात का मतलब नहीं समझा। क्या कहना चाहते हैं? अगर चचा के सामान में ये गुड़िया मेरे पास ना पहुंचती तो भी आप मुझसे राब्ता कायम करते? हाँ, हम फिर भी तुमसे राब्ता कायम करने पर मजबूर थे, क्योंकि कुछ लोगों की आजादी का सबब तुम्हारी जात को जरूर बनता था। बात को प्लीज वाज़े कीजिए। क्या तुम कदीम इल्म के कायल हो और रूहों को मानते हो?
جی ہاں مانتا ہوں۔ تو پھر اس بات کا یقین کرو کہ تمہارے عمل نے بہت سی بے بس اور مجبور قیدی روحوں کو آزادی کی نعمت دی ہے۔ آج سے 1 صدی پیشتر ہماری ریاست سے ملحقہ ریاست لام نگر کے راجہ انل سنگھ نے علم کے زور سے ان کی روحوں کو قید کر دیا تھا اور ان کے جسموں کو گڑیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ راجہ انل سنگھ بونا تھا، اس کا قد بمشکل 3 فٹ تھا، مگر اس کا سر بہت بڑا تھا جس میں خباثت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ایک دن جبکہ میری بہن اور بہنوئی دریا کی سیر کر رہے تھے کہ ان کی کشتی الٹ گئی، وہ دریا میں غرق ہو گئے۔ ان کے مرنے کے بعد میری بھانجی میرے پاس آ گئی۔ بلقیس بہت حسین اور پیاری بچی تھی۔ اس خبیث انل سنگھ کی نظر میری بھانجی پر پڑ گئی۔ اس نے فوراً ہم سے رشتہ مانگا۔ میں نے اس کے ایلچی کو بری طرح دھتکار دیا۔ اس کے بارے میں نے سن رکھا تھا کہ اس کے خاندان میں کوئی قدیم علم سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے اور جس میں یہ منتقل ہوتا ہے وہ حد درجے کا ظالم اور عیاش ہو جاتا ہے۔ ایک دن میری بھانجی باغ میں سیر کر رہی تھی کہ اس نے اپنے علم کے زور پر اس پر نیند طاری کر دی، اور یہ لوگ جو اس وقت تمہارے سامنے بیٹھے تھے ٹھیک آج سے 1 صدی پیشتر اسی مقام پر بیٹھے تھے کہ وہ اچانک کہیں سے نمودار ہو گیا۔ اس کی خوفناک صورت دیکھ کر بہت سے لوگ خوف سے کانپنے لگے اور آتے ہی مجلس میں بڑی بدتمیزی سے میری بھانجی بلقیس کا رشتہ مجھ سے مانگنے لگے۔ میں چونکہ خود بھی کچھ قدیم علم سے دلچسپی رکھتا تھا، اس کو اپنے علم کے زور سے میں نے سزا دینی چاہی مگر ناکام رہا۔ اس کے موکل بہت طاقتور تھے، میرے ہر وار کو بچا گئے۔ اس نے ایک وار کیا جس سے اس نے ان سب لوگوں کو گڑیوں کی شکل میں تبدیل کر دیا اور ان کی روحیں قید کر دیں۔ میں ایک عرصے تک پہاڑوں، جنگلوں اور دریاؤں میں بیٹھ کر وظائف پڑھتا رہا۔ آخر ایک دن بشارت ہوئی کہ یہ لوگ 1 صدی تک اس کی قید میں رہیں گے، اس کے بعد ایک آدمی آئے گا، وہ ان کو آزاد کرائے گا۔ ایک دن اچانک تمہارے چچا ادھر نکل آئے۔ وہ اس جگہ آ کر بہت عرصہ زندہ رہے، مرنے سے پہلے اپنے بھائی اور بھابھی اور تم تک پہنچنے کی تمنا لیے اس دنیا سے سدھار گئے۔ ان کی موت کا ذمہ دار بھی یہی شخص تھا۔ پھر اچانک مجھے ایک دن بشارت ہوئی اور اشارہ ہوا کہ اب ان مظلوم قیدی روحوں کے آزاد ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ آج ان کو قید ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے، اب اس کا نجات دہندہ آنے والا ہے۔ مجھے تمہاری شبیہ دکھائی گئی۔ جب مجھے یہ پتا چلا کہ تم مہربان علی کے بھتیجے ہو اور ان دنوں فاقہ کشی کی وجہ سے تمہاری حالت بہت لاچار ہے، تو ہم نے فوراً تمہاری مالی امداد کا بندوبست کیا۔ تو کیا وہ مالی مدد آپ کی طرف سے تھی؟ ہاں، وہ ہماری طرف سے تھی۔ اور وہ آپ کی بھانجی؟ وہ ابھی مناسب جسم کی تلاش میں ہے، جب اسے جسم مل جائے گا وہ خود بخود تمہارے پاس چلی آئے گی۔ یہ کہہ کر اسماعیل جا خاموش ہو گیا۔ اچانک ایک خادم 2 بھاری تھیلے اٹھائے ہوئے داخل ہوا۔ اسماعیل جان نے ہاتھ کے اشارے سے وہ تھیلے میرے قریب رکھنے کو کہا اور مجھ سے بولا، یہ ہماری طرف سے ایک حقیر نذرانہ ہے اور اس خوشی میں قہوے کا ایک اور دور چلنا چاہیے۔ میں نے قہوے کے 2 گھونٹ ہی پیے تھے کہ اچانک مجھ پر گہری نیند طاری ہوئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں موجود تھا اور وہ بھاری بھرکم تھیلے میرے پاس پڑے تھے۔ ہر گزرا ہوا منظر میری آنکھوں کے سامنے خواب کی مانند تھا۔ میں نے ایک تھیلے کو کھول کر دیکھا، وہ ہیرے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ ریاست عالم پور کا خزانہ میرے پاس پڑا تھا۔ جب میں نے ان کو زمین پر الٹ دیا تو اس میں سے ایک کاغذ کا رکھا ہوا پرزہ برآمد ہوا۔ کاغذ بہت عمدہ اور خوشبودار قسم کا تھا، جس پر لکھا تھا، میرے محبوب، میرے محسن، میرا انتظار کرنا، میں ضرور آؤں گی۔ اب میں دنیا کا امیر ترین انسان ہوں، دنیا کا ہر آرام اور آسائش مجھے میسر ہے، مگر میں آج بھی اپنی اس محبوبہ کا منتظر ہوں جس کے بغیر میری روح میں تنہائی اور سناٹا ہے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ وعدے کے مطابق ایک نہ ایک دن میری زندگی میں ضرور واپس آ جائے گی۔